So last time we have done brief about all the sections. Now today we are going to see how practically we can do sums regarding related to deductions of section 80, 80C to 80U, how we can deduct during our tax planning. So see, according to 80, according to 80, Your voice is slowly. my voice is slow. Is it audible now? Slowly. Slow. Is it fine now? Yes, ma'am. Okay. So according to ATC, there are some contributions by an individual where we can have deductions during our tax planning. So these are basically life insurance policies, PPF account, ULIPs, interest received on NSC. So what these are the things we can get deductions. So how will we compute deductions during our tax filing the tax return? So if, for example, first see this example. From the following particulars furnished by an SSC, SSC is the person whose income tax we are assessing. जो person है, जो individual है, जिसका हमें tax pay करना है, that is called as SSC. Compute deduction under section 80. So PPF deposit 80,000 interest accrued. I hope my screen is visible. ULIP is 6,000 interest received. So this is the performer where you can LIC premium is 20,000. So LIC premium 20,000. Now ULIP 6,000. PPF deposit. This way you can have your all the computation of deductions under section 80C. But the thing is only maximum limit allowed is 1,50,000. So 1,50,000 taka you will get deduction. This 1,800 will be carry forward to add your taxable income. So there is this is the main section of ATC. Other than this ATC, there are subsections also in which this is ATCCD. This is a deduction for contribution to the pension account. So agar if somebody is taking the government notified pension scheme, अगर किसी ने national pension scheme ले रखी है, जैसे अटल pension scheme है government of India की, then you will get either 10% of the salary या फिर 50,000 का additional benefit आपको सेक्शन 80 CCD 1B ये सब क्लॉज है इसका, इसके अंडर में आपको मिल सकता है, which was proposed in the budget 2015, right? So we'll see the example. You will get a clear understanding of all these sections when you do your numericals problem. Suppose the example is given. See, this is the basic performance. This is the basic performer where you need, this is the specimen to calculate deductions where you need to write deductions under ATC. ATC में जो भी आपको deductions हुए हैं वो यहाँ mention करने हैं. Then CCD में deduction under CCD जहाँ पे भी employer की तरफ से आपका कोई भी tax का contribution pay किया गया है. Then total is this. यहाँ तक कि whatever is your limit, this limit is 1,50,000. इससे ऊपर आपकी लिमिट नहीं होती है. दिस अंडर सेक्शन सी, सीसीसी एंड सीसीडी. देन देयर इज एडिशनल, आप इसमें ऐड कर सकते हैं कंट्रीब्यूशन टू द पेंशन स्कीम बाय एनी इंडिविजुअल, जो कि सीसीडी 1B. रिमेंबर दिस क्लॉज 1B. 1B के अंडर में इनकम टैक्स एक्ट इज सेइंग कि इफ यू हैव कंट्रीब्यूटेड टू नेशनल पेंशन स्कीम, तो आपको मैक्सिमम 50% तक का और भी एक एडिशनल बेनिफिट मिल सकता है व्हाइल कंप्यूटिंग योर टैक्स. सो दिस इज first example. Mr. Narendra completed his studies on 2019 1st April and was immediately employed by the government of India. By the government on the following terms. Basic salary was 20,000 per month. And whenever we are saying salary may always included salary plus DA. Whenever we'll go to, we are going to calculate salary means 20,000 plus dearness allowance पे we will get the 10% जो यहाँ mention किया गया. 10% of the salary. 10% of salary means
जहां पर भी आपको बेसिक सैलरी प्लस डी अलाउंस ऐड करना पड़ेगा. बोनस इज 40,000. नाउ ड्यूरिंग दिस ईयर दिस हिज एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूटेड ₹33,000. उसके एम्प्लॉयर ने 33,000 कॉन्ट्रीब्यूट किया टू द पेंशन स्कीम बीइंग नोटिफाइड अंडर सेक्शन 80 CCD ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961. सो नरेंद्र ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड सिमिलर अमाउंट. ये जो है ये तो आपके एम्प्लॉयर ने किया, राइट. एंड द सेम अमाउंट, सिमिलर अमाउंट जो था 33,000 का, वो भी आपके नरेंद्र ने खुद भी किया, एम्प्लॉयर ने भी किया. हिज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज 50,000. अगेन this is the income, this is the again house property से income है. during the year he contributed ₹50,000 to pension plan of LIC. now 15,000 उसने पे किया LIC का. to PPF 1 लाख का PPF में पे किया है. and paid LIC premium of 16,000. जिस पॉलिसी की जो वैल्यू है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो उसने पॉलिसी ली है उसकी वैल्यू तो 1,20,000 है, बट उस ईयर में ही हैज पेड द 16,000 का उसने प्रीमियम पे किया. बट अदर थिंग इज LIC प्रीमियम जो भी आप पे करते हैं इन दैट पर्टिकुलर ईयर, दैट शुड बी द 10%. जो 10% होता है ना सम अमाउंट का, उसका आपको डिडक्शन मिलता है. सो 1,20,000 का यू विल गेट 10% डिडक्शन. नाउ हियर इज द, वी नीड टू कंप्यूट हिज टोटल इनकम. उसकी टोटल इनकम कितनी है? सी इनकम फ्रॉम सैलरीज, दिस इज द सैलरी हेड है, जो कि इनकम फ्रॉम सैलरीज में सबसे पहले तो उसको चेक किया जाएगा बेसिक कितनी है. तो 20,000 इंटू 12 इक्वल्स टू 2,40,000. नाउ बोनस ही वाज गेटिंग हियर 40,000 का बोनस मिल रहा था. विल ऐड द बोनस हियर. नाउ डियरनेस अलाउंस मीन्स जो महंगाई भत्ता होता है 5,000 इंटू 12 60,000 वाज हियर. नाउ एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम, एम्प्लॉयर ने जो कॉन्ट्रीब्यूशन किया वो भी तो उसकी सैलरी का एक पार्ट है. एम्प्लॉयर ने पे किया, बट कॉस्ट टू कंपनी जिसको हम CTC बोलते हैं वो पे तो उस बंदे के लिए किया गया ना. सो वो दैट शुड आल्सो बी इंक्लूडेड बिकॉज वो उसकी इनकम का एक पार्ट हो गया. सो ग्रॉस सैलरी उसकी बनती है यहाँ पे 3,73,000, राइट. नाउ उसमें से अब हमें डिडक्शन देखना है. डिडक्शन क्या है? लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन. इन 2019 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ आपका जो बजट आया था, बजट में दे हैव अलाउड 40,000 तक का डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन. बेसिकली प्रीवियसली इट वाज लाइक मेडिकल अलाउंस हुआ करता था 15,000 का एंड 19,200 का कुछ ट्रेवल अलाउंस होता था. उसको उन्होंने हटा करके बेसिकली एक ही स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दिया है, जो कि 2019 में तो 40,000 था. नाउ 2020 इस वाले सेशन के अंदर स्टैंडर्ड डिडक्शन जो अलाउ किया गया है वो अब है 50,000, बट प्रीवियसली इट वाज 40,000 का डिडक्शन स्टैंडर्ड डिडक्शन में था, जो कि आपकी ग्रॉस सैलरी से डिडक्ट हो जाता है. नाउ अगेन इट इज so when we deduct this 40,000, now the income is 3,33,000. now income from house property, उसको हाउस की प्रॉपर्टी से भी एक हियर उसको हाउस की प्रॉपर्टी से एक अमाउंट मिल रहा था. so वो 50,000 था. that will also be included in the income. so it is now gross total income. gross total income आपकी कब बनती है? it's 3,83,000. ये तब बनती है जब आप जितने भी आपके हेड्स हैं, I told you in previous class there are total 5 heads जिससे कि हमारी इनकम की कंप्यूटेशन होती है. जो 5 हेड होते हैं उनको मिला करके इनकम की कंप्यूटेशन होती है. एंड आफ्टर दैट वी गो फॉर द डिडक्शन पार्ट. जो भी 80C से 80U तक जितने भी डिडक्शंस होते हैं, देन वी विल गो टू दैट पार्ट. सो नाउ डिडक्शन, दिस इज अवर ग्रॉस टोटल इनकम, जिसको कि हम शॉर्ट फॉर्म में GTI भी बोलते हैं, राइट. सो ग्रॉस 80. नाउ डिडक्शन के पार्ट में विल सी 80C का किस पे मिलेगा? हमें LIC पे. LIC पे ही हैज पेड 60,000, he has paid 16,000, but the policy की value was 1,20,000 and 1,20,000 का 10% if you see this is 12,000. so क्या हो जाएगा? 12,000 इसका
12,000 का अमाउंट है, दिस इज LIC का प्रीमियम। देन उसने कंट्रीब्यूशन किया PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड में 1 लाख का, सो 1 लाख एंड 12,000 दिस हैज बिकम 1,12,000। नाउ 80CCC पेंशन प्लान ऑफ LIC भी उसने लिया है, जिसके लिए कि ही इज पेइंग 15,000। नाउ दिस CCD, दिस इज द नोटिफाइड पेंशन स्कीम, जिसके अंदर उसने ओन कंट्रीब्यूशन भी किया है। टोल्ड यू यहाँ पे उसने सिमिलर अमाउंट 33,000 का जो ओन कंट्रीब्यूशन किया था, एक तो वो था, उसमें भी आप दोनों में से कम अमाउंट का पे करते हैं। 10% ऑफ बेसिक एंड DA फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। विल चेक बोथ कि आपने कितना पे कंट्रीब्यूशन किया है एंड आपका 10% जो सैलरी का है वो कितना बनता है। तो उन दोनों में से जो लेस अमाउंट होता है विल कंसिडर दैट। तो अगर लेस अमाउंट यहाँ 33,000 है, यहाँ पे 2,40,000 प्लस 60,000 इज 3 लाख। 3 लाख का 10% इज 30,000। So 33,000 और 30,000 में से which one is less? 30,000. So that is the reason we will deduct this part. So ये total आपका यहाँ पे हो जाता है 1,57,000, right? Now अब ये CCD हो गया section. As per section 80CCE, total deduction under 80CE, 80CCC and 80CCD other than employers contribution cannot exceed 1,50,000। अब यहाँ पे जो आपकी लिमिट बनती है वो तो 1,50,000 बनती है, तो आप उससे ज्यादा पे कर नहीं सकते हो। बट हमने एक और चीज देखी थी, अदर देन दिस 1,50,000 जो यहाँ पे मेंशन किया है कि जब 80CCD1B क्लॉज के अंदर अगर आपने नोटिफाइड, गवर्नमेंट नोटिफाइड या कॉन्ट्रीब्यूशन टू नेशनल पेंशन सेविंग स्कीम किया है, तो वहां पे आपको 50,000 तक का और बेनिफिट मिल जाता है डिडक्शन के टाइम पे। सो व्हाट वी विल डू, यहाँ पे क्या है कि ये 10,000 आया। अब ये 10,000 आया कैसे? सी, उसको जो था 33,000 पे करना था। सी यहाँ पे वर्किंग नोट में इफ यू विल सी, नरेंद्र ने अपना 33,000 पे किया था, बट 33,000 में से कितना उसने एडजस्ट किया? यहाँ पे उसका एडजस्टमेंट हुआ सिर्फ 30,000 का, राइट? दैट मीन्स यहाँ पे उसने 33,000 में से 1,57,000 पे 1,57,000 उसका टोटल अमाउंट हुआ था, बट उसको कितना डिडक्शन मिला? 1,50,000 का। उसके बाद में 80CCD में उसने पे तो 33,000 किया था, उस 33,000 में से उसका जो अमाउंट है वो यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है ऑलरेडी। बचा हुआ जो उसका अमाउंट है वो 10,000 का वो यहाँ पे ऐड करेगा, जो कि उसने इसमें क्लेम नहीं किया था। जो ऊपर वाला ऑप्शन है ना CCD, इस वाले सब सेक्शन 80CCD में उसने क्लेम नहीं किया था। रेस्ट ऑफ द अमाउंट वो कहाँ क्लेम करता है? 1B के अंदर। सेम वे में जैसे एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन था, एम्प्लॉयर का भी कंट्रीब्यूशन था 33,000, बट उस 33,000 में से हम हमेशा दोनों चीज देखते हैं, एक तो जो कंट्रीब्यूशन हुआ है वो, अदर थिंग इज बेसिक ऑफ DA, तो ये भी 33,000 हो रहा है, इन दोनों में से लेस होता है 30,000। सो ये 1,90,000 जो 1,50,000 था, ये प्लस मैक्सिमम ऑफ 50,000 की आपकी लिमिट बनती है यहाँ पे, मैक्सिमम ऑफ 50,000, तो ये दोनों मिला के आपको 1,90,000, ये 1,50,000 प्लस ये दोनों 40 30 एंड 10 40 प्लस ये 90, 1,90,000 यू नीड टू डिडक्ट फ्रॉम 3,83,000 जो कि आपकी ग्रॉस टोटल इनकम थी, उसमें से आपको 1,90,000 डिडक्ट करना है। देन योर टोटल इनकम विल बी 1,93,000। इसके ऊपर ये आपकी टैक्सेबल इनकम कहलाती है, जिसपे आपको टैक्स पे करना होता है। दिस इज ओनली टोटल इनकम। यहाँ पे हमें चेक करनी थी कि हमें आफ्टर ऑल आवर इनकम जितना भी हमारा GTI बना, एंड देन उसके बाद डिडक्शन जो हो रहा है हमारा 80 के अकॉर्डिंग, उसके बाद जो भी हमारा रिमेनिंग अमाउंट बचता है वो हमारी इनकम हो जाती है, जिसके ऊपर हमें टैक्स पे करना होता है। सो दिस वाज अंडर ATCD and 80CC1B. These are the subsections of 80C. Now let's now let's see another example. So Mr. Vivek is a government employee with an annual basic salary of 6 lakhs. Salary है उसका 6 lakh. So income के केस में we'll write यहाँ पे basic salary 6 lakh. 2 lakh as DA and 1,20,000 as taxable allowance. So 2 lakh again its dearness allowance will mention in the head of income. Now taxable allowance again it is our income. So income के case में you need to write it
हिज अदर इनकम्स आर 1 लाख, एक 1 लाख इनकम और है. The government contributes 10% of his basic towards national pension fund while he contributes 10%. तो 10% गवर्नमेंट पे कर रही है नेशनल पेंशन फंड में, 10% ये खुद पे कर रहा है. सो एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे वो उसका बेसिक सैलरी का हो जाएगा 10% बेसिक प्लस डीए, जो कि 6 लाख प्लस 2 लाख 8 लाख हो गई. 8 लाख का 10% इज 80,000. सो दिस इज ऑल्सो अगेन इंक्लूडेड इन द इनकम पार्ट. सो टोटल उसकी जो ग्रॉस सैलरी बनती है वो बनती है यहाँ पे इसकी 10 लाख सैलरी, राइट. अब इस 10 लाख सैलरी में से अगेन स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है 40,000 का. सो आपकी हो गई 9,60,000 का अमाउंट. नाउ अदर इनकम जो यहाँ पे मेंशन थी 1 लाख, वो भी हमारी इसमें ऐड होगी बिकॉज इनकम का हेड है. तो हमारी टोटल जीटीआई बनती है यहाँ पे 10,60,000. नाउ यहाँ पे जीटीआई के बाद अगेन द सेम, आप जीटीआई तक पहुंचते हैं, उसके बाद यू नीड टू स्टार्ट डिडक्शन. जो भी डिडक्शन आपके 80 सेक्शन के अंडर होते हैं वो डिडक्शन आपको देखने हैं. नाउ पहला उसने पे किया, ही पेड 25,000 एज LIC प्रीमियम, 5,000 एज प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ हाउसिंग लोन एंड डिपॉजिट 60,000 इन PPF. ये 55,000 है, दिस इज 55,000. कंप्यूट हिज टोटल इनकम. सो उसके जो स्टैंडर्ड डिडक्शन हमारी जीटीआई के बाद ATC के अकॉर्डिंगली उसने क्या किया, LIC पे किया 25,000 का, पीपीएफ पे किया 60,000 का, एंड हाउसिंग लोन का जो प्रिंसिपल था वो पे किया 55,000. क्योंकि हमारा हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल जो है वो डिडक्शन में आता है ATC के अकॉर्डिंग है. ATCCD1 अगेन NPS, उसने जो नेशनल पेंशन स्कीम में वो खुद भी पे कर रहा था 10%, उसका अमाउंट आता है अगेन 8 लाख का 10% 80,000. नाउ इट हैज बिकम टोटल 2,20,000. बट अगेन हमारी इनकम की डिडक्शन की ATC में लिमिट कितनी हो जाती है, ओनली 1,50,000. ठीक है. सो 1,50,000 हो जाती है. तो अब हमारा जो रिमेनिंग अमाउंट है वो हम कहाँ से एडजस्ट करेंगे. So remaining amount will get adjusted from that CCD1B contribution to national pension scheme, जो कि अमाउंट हमने ऊपर क्लेम नहीं किया था, बचा हुआ अमाउंट यहाँ पे हम क्लेम करते हैं. सो कैसे क्लेम करा, यहाँ पे उसका कितना था कंट्रीब्यूशन, 80,000 कंट्रीब्यूशन था. ठीक है. 80,000 कंट्रीब्यूशन में वो यहाँ कितना क्लेम कर पाया, यहाँ पे वो कितना क्लेम कर पाया. सी 1,40,000 तो उसका इन तीनों चीजों से हो चुका था, राइट. अब उसकी जो लिमिट थी वो कितनी थी, 1,50,000. सो यहाँ पे इसकी लिमिट कितनी थी, यहाँ पे आपने 1,40,000 थी, बट आपकी लिमिट थी 1,50,000, राइट. अब 1,50,000 में से जो 10,000 अमाउंट आपका एडजस्ट हुआ है, वो 10,000 अमाउंट कहाँ का था, वो 10,000 अमाउंट आपका इस वाले 80,000 में था जो आपने ऑलरेडी कंट्रीब्यूशन NPS में पे किया है. एम्प्लॉयर ने भी 80,000 पे किया है, यू ऑल्सो हैव पेड 80,000. सो ये जो 80,000 का टोटल अमाउंट है, इफ यू सी यहाँ पे 10,000 तो ऑलरेडी बीन एडजस्टेड हियर, यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है बिकॉज अब 1,40,000 था, लिमिट 1,50,000 थी, तो 10,000 कौन सा वाला एडजस्ट हुआ, ये वाला. बट रिमेनिंग 70,000 कहीं भी एडजस्ट नहीं हुआ. सो दिस because you have contributed to national pension scheme, this 70,000 can be adjusted in this section CCD1B. but मैक्सिमम लिमिट होती है हमारी 50,000. सो हम 50,000 तक का ही क्लेम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं इस सेक्शन के अंडर में. नाउ एम्प्लॉयर का भी कंट्रीब्यूशन जो था 80,000 वो आपने इसमें ऐड किया, तो टोटल हमारा इसका जो अमाउंट बना 1,50,000 प्लस 50,000 इज 2 लाख प्लस 80,000 इज 2,80,000. सो 2,80,000 भी आपकी इस ग्रॉस टोटल इनकम GTI में से लेस कर दी जाएगी, डिडक्ट कर दी जाएगी, एंड 7,80,000 आपकी इन टोटल इनकम बच जाएगी जो टैक्सेबल अमाउंट में आएगी. सो
सो 80C, ये सब सेक्शन 80C के 80CCC एंड 80CCD1 इन टुगेदर की जो लिमिट है, इट कांट गेट एक्सीड फ्रॉम 1,50,000, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी. नाउ इफ एनीबडी हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू नेशनल पेंशन स्कीम, गवर्नमेंट के द्वारा रन की गई है, एक है अटल पेंशन स्कीम, जिसमें अगर आप डालते हो तो अंडर द सेक्शन 80CCD और इसका क्लॉज आ जाता है आपका 1B में मैक्सिमम आप 50,000 का और डिडक्शन का अमाउंट ले सकते हो. नाउ अगर 80D, नाउ सेक्शन 80D, 80D इज फॉर मेडिकल इंश्योरेंस के लिए होता है. जो भी प्रीमियम आप पेड करते हो, प्रीमियम पेड टू इफेक्ट और कीप इन फोर्स एंड इंश्योरेंस ऑन द हेल्थ, खुद की हेल्थ के लिए, सेल्फ के लिए, स्पाउस के लिए, डिपेंडेंट के लिए. डिपेंडेंट कोई भी हो सकते हैं, आपके चिल्ड्रन हो सकते हैं, आपके ब्रदर सिस्टर भी हो सकते हैं, इफ दे आर नॉट वर्किंग, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं. एनी कॉन्ट्रीब्यूशन मेड टू CGHS, सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम में इफ आपने कोई कॉन्ट्रीब्यूशन पेड किया है तो वो भी इस सेक्शन 80D में डिडक्शन के लिए इंक्लूड किया जाएगा. Such other health scheme as may be notified by central government. Contributory health service scheme for Department of Atomic Energy has been notified by the central government. सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एटॉमिक एनर्जी में काम करने वाले, डिपार्टमेंट के काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए भी एक अलग तरह से स्कीम निकाली जाती है. क्वांटम ऑफ डिडक्शन कितना मैक्सिमम हो सकता है? दिस लिमिट इज सेम, ₹20,000. 20,000 is for a person whose age is less than 60 years, and it is maximum of 50,000 in case of the senior citizen. If somebody's age is over 60 years of the age, the 50,000 ka maximum claim he can take for the self, spouse or dependent children. Okay. In case of HUF is also reduction 25,000 का, 50,000 family member का same है. HUF इज एनी हिंदू फैमिली जो कि एक ही बिजनेस, एक ही परिवार में रहती है, जिस HUF का मतलब बेसिकली हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, दादा दादी, उनके बच्चे, बच्चों के दादा दादी आ जाते हैं. एडिशनल एजुकेशन ऑफ 25,000. सीनियर सिटीजन के केस में अगेन इट इज 50,000. नाउ डिडक्शन फॉर हेल्थ चेकअप इस 25,000 से अलावा नहीं, इट इज इंक्लूडेड इन दिस इफ अगर आपका 5,000 की लिमिट है, इफ यू आर गोइंग फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, अगर आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए लेते हो फॉर सेल्फ, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन और पेरेंट्स मेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. However, the said deduction of 5,000 is within the overall limit of 25,000 और 50,000. ऐसा नहीं है कि 25,000 के अलावा 5,000 का प्रिवेंटिव चेकअप ले सकते हो. मैक्सिमम लिमिट इन सेक्शन D you need to remember is 25,000 for person whose age is below 60 and 50,000 whose age is above 60. So 50,000 की लिमिट है, उसी के अंदर 5,000 का आपका डिडक्शन इंक्लूडेड, 5,000 का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का अमाउंट इज इंक्लूडेड इन दैट मैक्सिमम लिमिट. Also कैश पेमेंट्स आर नॉट अवेलेबल फॉर डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन. कैश, अगर आपने कैश पेमेंट किया है तो उसे हम इंक्लूड नहीं करते. इट शुड बी मेड बाय चेक, ऑनलाइन होना चाहिए, उसका आपने पे किया है. नाउ एग्जांपल से लेट्स अंडरस्टैंड दिस. मिस्टर नमो, एज 58 years, paid medical insurance premium of 20,000 during the previous year 1920 to ensure his health as well as health of his spouse. So उसने 20,000 का प्रीमियम पेड किया है, जिसके अंदर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों इंक्लूडेड है. उसने अपनी एज वेल एज वाइफ की, दोनों की मिलाकर के 20,000 he had paid. He also paid medical insurance premium of 47,000 during the year to ensure the health of his father. अब 40,000 का उसने प्रीमियम पे किया है फॉर द एज ऑफ फादर, 78 ईयर्स के उसके फादर है, दैट मीन्स वो 60 ईयर्स से ऊपर है. रिमेंबर यहाँ पे आपका 25,000 का लिमिट लगेगा, यहाँ पे आपका 50,000 का मैक्सिमम लिमिट लगेगा. राइट. नाउ ही कॉन्ट्रीब्यूटेड 3,600 टू CH, इसने CGHS स्कीम के लिए भी 3,600 रुपए, 3,600 हैज पेड. He has incurred rupees 3,000 in cash on preventive health checkup for himself and his spouse for
3,000 उसने अपने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए डाला है, 4,000 उसने अपने फादर के लिए डाला है. नाउ कंप्यूट द डिडक्शन. 80D के अंदर में जो डिडक्शन होगा वो किस तरीके से कंप्यूटेशन होगा, लेट्स सी. नाउ Now, premium paid and medical expenditure incurred for self and spouse. मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम जो उसने पे किया था 20,000 था. मैक्सिमम डिडक्शन जो है उसका 20,000 ही होगा. नाउ CGHS में जो उसने कंट्रीब्यूशन पे किया दैट वाज 3600. सो अगेन ये भी मैक्सिमम इतना ही था, इतना ही आपको मिल जाएगा. नाउ एक्सपेंस ऑन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप ऑफ सेल्फ एंड स्पाउस, यहाँ पे इसने कितना पे किया 3,000. इन तीनों का टोटल व्हाट इज द टोटल 26,600, but the maximum limit allowed is only 25,000. So यहाँ पे ये कितना adjusted amount हो सकता है, यहाँ पे only 1,400 is being paid for the preventive checkup. उसको 1,400 तक का ही उसमें फायदा मिलेगा. रेस्ट जो 1,600 का उसका बचता है वो उसको नहीं मिलेगा, बिकॉज द मैक्सिमम लिमिट वाज 25,000. अगेन इफ ही हैज पेड प्रीमियम फॉर फादर, सो मेडिक्लेम जो उसने 60 इयर्स की ओवर द एज ऑफ 60 ईयर वाज हिज फादर, सो 47,000 ही पेड. सो मैक्सिमम लिमिट जो मैक्सिमम रिडक्शन है, दिस ऑल अमाउंट कैन बी टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल डिडक्टिंग. अगेन एक्सपेंडिचर ऑन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप of father is 4,000, but इसका टोटल अमाउंट कितना बन गया नाउ 51,000. एंड इट इज रिटन दैट 60 इयर्स की ऊपर के एज वालों के लिए भी मैक्सिमम अमाउंट डिडक्शन इज 50,000. सो इट्स 1,000 लेस होगा. यहाँ पे एडजस्टेड अमाउंट क्या आएगा 3,000. सो इतना. सो दोनों का मिला के द टोटल डिडक्शन इसको कितना मिल सकता है सेक्शन 80D के अंडर में 75,000. 25,000 फॉर द सेल्फ एंड 50,000 फॉर द father or mother or the senior citizen who are over the age of 60 years. Mr. Ram Prasad, an age of 40 years, has made the following payment during the financial year of 1920. Payment of medical insurance premium of his policy 15,000. Is it considerable or not considerable? Can anybody answer? Medical insurance for the self he has paid, तो उसको डिडक्शन मिलेगा नहीं मिलेगा, yes or no? मिलेगा, because he has paid for himself and his age is also 40 years, and 40 years के लिए we can see 25,000 तक का डिडक्शन अलाउड है. पेमेंट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ हिज स्पाउस, स्पाउस का मिलेगा, yes. सो दोनों का अमाउंट कितना हो गया 15,000 प्लस 4,000 19,000. अगेन पेमेंट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन पॉलिसी ऑफ हिज यंगर डॉटर हु इज डिपेंडेंट ऑन हिम, जो कि डिपेंडेंट डॉटर है, 3,000 उसका मिलेगा, yes. 19 प्लस 3 22,000 हो गया. पेमेंट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन पॉलिसी ऑफ हिज एल्डर डॉटर हु इज सेल्फ एम्प्लॉयड, जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड है एंड नॉट डिपेंडेंट ऑन हिम. अगर वो डिपेंडेंट नहीं है तो इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द डिडक्शन, क्योंकि वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, उसे अपना रिटर्न खुद फाइल करना होगा, वो उस चीज का डिडक्शन अपने फादर के ITR में नहीं शो कर सकती है. पेमेंट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन पॉलिसी ऑफ हिज पेरेंट्स, पेरेंट है जिसकी 68 ईयर्स की एज है और उनका 18,000 फादर का किया, 18,000 मदर का किया, तो क्या ये डिडक्शन में आएगा? यस. 36,000 विल कम इन डिडक्शन. Payment of rupees 3,000 towards expenditure on preventive health checkup for his own and wife. 3,000 आएगा, आ जाएगा. रीजन बीइंग, यहाँ पे हम जब चेक करते हैं, सी 15,000 प्लस 4,000 19,000, 19,000 प्लस 3,000 22,000, और अभी भी उसकी एक लिमिट बाकी है 3,000 की. सो दिस विल बी एडजस्टेड इन दैट अमाउंट. दिस 3,000 विल बी एडजस्टेड इन 22,000 प्लस 3,000, सो इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 25K. सो इतना अमाउंट आप मैक्सिमम कर सकते हो. सो यस, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन हिज पॉलिसी क्वालिफाई फॉर डिडक्शन करता है. फॉर हिज स्पाउस के लिए भी वो डिडक्शन होता है. 3,000 इस यंगर डॉटर के लिए भी होता है. एल्डर के लिए नॉट क्वालिफाई बिकॉज शी इज सेल्फ डिपेंडेंट. मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी 36,000 क्वालिफाई करेगा बिकॉज पेरेंट की जो लिमिट है सीनियर सिटीजन की दैट इज 50,000.
नाउ ओवरऑल लिमिट ये 3000 प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का भी उसमें इंक्लूडेड हो जाएगा, राइट। सो आपको टोटल डिडक्शन 25,000 प्लस 50,000 75,000 तक का डिडक्शन आपको मिल जाएगा। So maximum deduction allowed here is 75,000. 60 below 60 years के लिए 25,000. In that 25,000 5,000 health measure is included. आप preventive health checkup के लिए जाते हैं तो वो included रहता है। Now Mr. Azad, aged 59 years, paid medical insurance 22,000 का उसने प्रीमियम पे किया ड्यूरिंग दिस फाइनेंशियल प्रीवियस ईयर 1920, जिसमें कि उसकी हेल्थ का स्पाउस का भी है इंक्लूडेड है और डिपेंडेंट चिल्ड्रन का भी, दैट इज ही हैड पेड 22,000. नाउ ही हैज आल्सो पेड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 33,000 ड्यूरिंग द ईयर. 78 इयर्स के उसके फादर मदर है जिसका उसने 33,000 दिया. सो दिस विल आल्सो गेट इंक्लूडेड, दिस विल आल्सो गेट इंक्लूडेड. He incurred medical expenditure of 20,000 on his father, age 81. So 20,000 father का है तो यहाँ पे 33 plus 20, that means 50,000 तक का he can take. 3,000 का उसको फिर भी नहीं मिलेगा. 81 year who is not covered under mediclaim policy. His father is also not dependent upon him. He contributed 6,000 भी उसने CGHS स्कीम के अंदर डाला. अब 80D में उसको कितना डिडक्शन मिलेगा, लेट्स चेक. So medical premium paid for self, spouse and children 22,000 है. maximum deductible amount है. So complete हो जाएगा. Now CGHS के अंदर उसने 6,000 पे किया, but maximum allowed limit कितनी है, 5,000. So यहाँ पे आपको 3,000 इंक्लूडेड रहेगा. तो ये 25,000 तक का आपका कोटा यहाँ पे कंप्लीट होता है. नाउ फादर के लिए जो उसने पे किया है 33,000 और जो मेडिकल एक्सपेंस मदर के लिए जो उसने 33,000 पे किया एंड फादर के लिए जो 20,000 पे किया है, उसमें से ये तो आपका हो जाता है. बट यहाँ पे आपकी लिमिट अगेन 53,000 पहुंच रही, दैट मीन्स 3,000 आपको यहाँ पे लेस हो जाएगा. तो ये 17,000 एडजस्टेड होगा 50,000 में. मैक्सिमम लिमिट आपकी 75,000 ही रहेगी टोटल मिला के. So I think let's go to another. Again, मेडिक्लेम इंश्योरेंस मिस्टर विनोद है, 31 इयर्स के हैं. इंश्योरेंस उन्होंने पेड खुद के लिए पे किया 9,000, स्पाउस के लिए 8,000, डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए 6,000. सो दिस ऑल 23,000 तो यहीं पे हो गया. ये 23,000 यहाँ पे इंक्लूडेड रहेगा. मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर फादर 18,000, सो ये भी इंक्लूडेड रहेगा. Now preventive health checkup for father 6,000 and preventive health checkup for paid in cash. Cash वाला का तो you can't. So paid. So medical insurance 23,000 का अमाउंट यहाँ पे ऑलरेडी हो गया है बिकॉज था ना. मेडिकल इंश्योरेंस फादर के लिए जो उसने पे किया 18,000 का वो हो जाएगा. नाउ अगर हम बात करें मेडिकल एक्सपेंडिचर जो प्रिवेंटिव हेल्थ के लिए लिया था, who is making this green line? So preventive health checkup जो फादर के लिए लिया था 6,000 था, उसकी मैक्सिमम लिमिट 5,000 है. दिस ही कैन ऐड इन दिस 18,000, राइट. बट प्रिवेंटिव चेकअप जो उसने खुद के लिए लिया था 4,000 का, उसका 2,000 ही मिल सकता उसको बिकॉज दिस 2,000 कैन गेट एडजस्टेड इन दिस 23,000 और ये जो 5,000 है दिस कैन गेट एडजस्टेड इन 18,000. सो 1825 यहाँ से वो ले सकता है क्योंकि दोनों की लिमिट मिला करके 5,000 ही होती है.
टोटल आप फादर के लिए पे कर रहे हो, खुद के लिए पे कर रहे हो, टोटल आपकी जो लिमिट हो जाएगी, यहाँ पे 5,000 है, यहाँ 7,000 है, इसकी लिमिट भी 5,000 है, इसका इतना मैक्सिमम लिमिट 2,000 यहाँ से बचता है, फिर भी 7,000 होता है, बट रेस्ट्रिक्टेड टू ओवरऑल मैक्सिमम लिमिट। आप किसी का भी प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप ले रहे हो, दैट शुड वो 50,000 प्लस 25,000 के अंदर ही इंक्लूडेड रहता है, वो 5,000 से ज्यादा जा ही नहीं सकता। सो ये 5,000 और ये अमाउंट मिला करके आपको टोटल ए बी एंड सी मिला करके 46,000 का डिडक्शन ही अलाउड होगा। नाउ डिडक्शन 80DD। 80DD क्या होता है? अब 80DD इज फॉर डिपेंडेंट डिसेबल्ड, जो डी फॉर डिपेंडेंट डिसेबल जो भी होता है, इन केस उनकी डिजीज को देखते हुए आपको कितना मैक्सिमम अलाउ होता है। लेट्स अंडरस्टैंड विद डायरेक्टली एग्जाम्पल, बिकॉज इसमें 75,000 तक का अमाउंट अवेलेबल होता है, बट इन केस एक फिक्स्ड अमाउंट दिया जाता है इफ द सीवियरिटी ऑफ द डिजीज इज अबव 80% की द पर्सन इज कंप्लीटली कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन अ पर्सन, अर्निंग पर्सन, तो उस केस में 1,25,000 का जो फिक्स डिडक्शन है वो अलाउ किया जाता है। So let's understand this with हाँ, और उस 1,25,000 के डिडक्शन के लिए आपको एक सर्टिफिकेशन की जरूरत होती है, जो सर्टिफाइड करती है कोई भी मेडिकल बोर्ड, जिसमें ये मेंशन होता है कि उसकी कितने परसेंट सीवियरिटी है एंड उसके साथ में कितना डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो। So how as per new rule 12 no document is to be attached with the income tax return के साथ नहीं करना पड़ता, बट दिस सर्टिफिकेशन होना चाहिए उसके लिए। और डिपेंडेंट का मीनिंग होता है यहाँ पे कोई भी, फॉर एनी इंडिविजुअल, उसका स्पाउस, उसके चिल्ड्रन, पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स, ब्रदर सिस्टर्स में आ सकते हैं, एसएससी के जिसका कि इनकम टैक्स रिटर्न असेस किया जा रहा है, who are dependent on him for maintenance. Same for the HUF member of Hindu family who are dependent on him for maintenance. Now डिसेबिलिटी के केस में देयर आर क्लॉज where disability would be defined under clause 1 of section 2 by the persons with disabilities equal opportunities protection of right and full participation act 1995। ये एक्ट है, रिमेंबर दिस नेम, जिसके अंदर नेशनल जो डिजीज है वो है ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन, मल्टीपल डिसेबिलिटी, ये सारी है, जिसमें ब्लाइंडनेस इंक्लूड होती है। रिमेंबर दिस, जब भी क्वेश्चंस आते हैं उसके अंदर स्पेसिफिक मेंशन होता है ऑल दिस डिजीज। लो विजन, लेप्रेसी जो होती है, हियरिंग इम्पार्टमेंट कितना परसेंट होता है, इट्स 40% और इट्स 80%। लोकोमोटर डिसेबिलिटी होती है, मेंटल इलनेस, सेरेब्रल पाल्सी, मल्टीपल डिसेबिलिटीज होती हैं। सो अ पर्सन विद डिसेबिलिटी मीन्स अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम नॉट लेस देन 40%। अगर 40% से लेस है उसकी डिसेबिलिटी तो वो कंसिडर नहीं की जाती है, बट 40% से ज्यादा ही होनी चाहिए। एंड सीवियरिटी के केस में सीवियर डिसेबिलिटी मीन्स 80% और मोर one of the more disabilities. Now for example, X incurred an expenditure of 15,000 on medical treatment of his brother who is disabled 56% in financial year 17-18. Calculate deduction available. कितना deduction available होगा? Now it is more than 40%. So more than 40% के केस में सीधा सीधा आपको 75,000 तक का डिडक्शन मिल जाएगा, ऑल्दो ही हैज ओनली स्पेंड 15,000। सो उसको मिल जाएगा, होली डिपेंडेंट है तो। ना कंप्यूट टोटल इनकम ऑफ मिस ऋतुपर्णा फ्रॉम फॉलोइंग। टैक्सेबल सैलरी उसकी 1,40,000, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स इज 60,000। नाउ एग्रीकल्चरल इनकम, एग्रीकल्चरल इनकम इज एग्जेम्प्टेड, एग्जेम्प्टेड इनकम होती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10(1). ये सेक्शन हम लेटर ऑन पढ़ेंगे आफ्टर दिस सेक्शन 80। ये एग्जेम्प्टेड इनकम में आती है। सो एग्रीकल्चर इनकम को आप ऐड नहीं करते हो दोज 5 हेड्स के अंदर। ही डिपॉजिटेड इन LIC एन्युटी प्लान, 18,000 उसने पे किया। He paid medical insurance premium by check for his dependent blind mother. Now here is blind return. So इसको यहाँ पर एक
पूरा यहाँ पे क्या मिलेगा उसको, इंश्योरेंस प्रीमियम मिलेगा प्लस उसको 1,25,000 का और फिक्स्ड डिडक्शन मिल जाएगा. लेट्स सी, टैक्सेबल सैलरी उसकी 1,40,000 है, 1,40,000. इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इज 60,000. दैट मीन्स इट मेक्स 2 लाख. उसकी ग्रॉस टोटल इनकम बन गई 2 लाख. फॉर जो आपका 4,000 एग्रीकल्चर इनकम था, दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड, दैट कम्स इन एग्जेम्प्टेड. ना उसमें से 80 के सारे डिडक्शंस हमें लेस करने. ना उसने एन्युटी प्लान का जो CCC है, लाइफ इंश्योरेंस 80 CCC, उसमें जब भी आप LIC के एन्युटी प्लान पे करते हो, 18,000 फुल डिडक्शन होगा. मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर मदर बीइंग सीनियर सिटीजन, जो 20,000 का उसने मेडिकल इंश्योरेंस पे किया है, वो भी उसका डिडक्शन होगा. प्लस बिकॉज उसका डिपेंडेंट है, वो सीवियर केस में आता है, बिकॉज वो ब्लाइंड है, सो वो 80% से अबव में माना जाता है, तो उसका यहाँ पे एक 1,25,000 का फिक्स डिडक्शन दिया जाता है. सो दिस विल ऐड करके 1,63,000 हो गया. सो 2 लाख में से आपने एज इट इज 1,60,000 को डिडक्ट किया. सो अब आपकी इनकम बचती है 37,000 टोटल इनकम. सो दिस वाज सेक्शन 80D जहां पे डिसेबल डिपेंडेंट के लिए डिडक्शन मिलता है. नौ सेक्शन 80DDB, जहां पे DD होता है वहां पे डिपेंडेंट की बात हो जाती है. जहां पे DDB हो जाता है, तो B के केस में मेडिकल एक्सपेंडिचर ऑन सेल्फ, इसमें सेल्फ भी इंक्लूड हो जाता है या डिपेंडेंट रिलेटिव भी इंक्लूड हो जाता है. इसमें अमाउंट ऑफ डिडक्शन अगर है तो आपको 40,000 का मिलता है डिडक्शन. अगर सीनियर सिटीजन है तो उसके केस में आपको ये 1 लाख मिल जाता है. अगेन दिस DDB, इसके अंदर कुछ स्पेसिफाइड होती हैं. DDB के अंदर देयर इज डिफरेंस बिटवीन देयर इज डिफरेंस बिटवीन DD में डिसेबिलिटी होती है, बट वहां पे आप इंक्लूडेड नहीं होते हो. सी इट इज रिटर्न कि यहाँ पे जो भी पर्सन होता है ना, वो डिपेंडेंट डिसेबल्ड के लिए ही होता है. बट इन केस ऑफ DDB, सेक्शन DDB में होता है, एक तो स्पेसिफाइड डिजीज होती हैं, दूसरा उसमें सेल्फ के लिए भी आप 40,000 तक का, इफ यू आर बिलो एज ऑफ 60 ले सकते हो डिडक्शन. इफ यू आर अबो एज ऑफ 60 1 लाख तक का मिलता है. और वो डिजीज जो है वो डिफाइंड डिजीज है जो कि मेंशन है, जैसे कि न्यूरोलॉजिकल डिसीज, डिस्टोनिया, मोटर न्यूरॉन्स, और इसमें मैलिग्नेंट कैंसर्स आ जाते हैं आपके, कई सारी बीमारियां, थैलेसेमिया हो जाती है. सो बहुत सारे डिसऑर्डर्स है जो कि स्पेसिफाई है. इसमें 40,000 अगर आपको भी बीमारी है और आपके मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं, देन यू नीड टू take deduction of 40,000 if you are below age of 60. Now there is another section after D, it comes E. E is for interest on education loan or interest on home loan. So deduction for interest on education loan के केस में, 80E के केस में deduction is allowed for interest on loan taken for pursuing higher education. After 12th, if somebody is taking loan for pursuing his higher education, तो ये इंटरेस्ट के ऊपर डिडक्शन अलाउड होगा. एंड ऑल्दो 8 इयर्स का पीरियड डिफाइंड होता है, 10 साल के लिए भी लिया, बट आपको डिडक्शन 8 इयर्स तक ही मिलेगा, जितना भी आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो ड्यूरिंग दैट असेसमेंट ईयर, सॉरी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. नाउ डिडक्शन 80EE. EE अगेन फॉर होम लोन पे जो इंटरेस्ट लिया है, बट दैट इज फॉर फर्स्ट टाइम बायर्स. आपका कहीं कोई घर नहीं है और आपने घर लिया है, सो इस सेक्शन के अंडर आपको डिडक्शन अवेलेबल होता है. हु इज द फर्स्ट टाइम ओनर? The value of the property purchased must be less than 50 लाख and the home loan must be less than 35 लाख. आपने जो भी प्रॉपर्टी ली है उसकी वैल्यू जो होती है वो 50 लाख से कम होनी चाहिए, और जो आपका लोन अमाउंट है दैट शुड बी लेस देन 35 लाख. द लोन मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर एक अच्छे बैंक, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट ऑथराइज्ड बैंक होते हैं उनसे लिया जाना चाहिए. Though this section, an additional deduction of 50,000 can be claimed on home loan interest. This is in addition to deduction of 2 lakh. एक सेक्शन 24 होता है इनकम टैक्स एक्ट का,
जब हम हमारी इनकम की कंप्यूटेशन करते हैं, अगर उस ड्यूरेशन में हमारा लोन जाता है तो वहां पे हमारा 2 लाख अंडर हो जाता है। उसके अलावा 50,000 हमें यहाँ पे सेक्शन 80 ई में भी डिडक्शन मिलता है। Now there is one more section in interest part, 80 EEA, deduction in respect of interest payable on loan taken for acquisition of residential housing property. इसके अंदर क्या है कि स्टैम्प ड्यूटी मिलाकर अगर आप अपने रहने के लिए कोई घर ले रहे हो तो उसमें आपकी स्टैम्प ड्यूटी मिला करके प्रॉपर्टी की जो वैल्यूएशन है वो 45 लाख या उससे कम होनी चाहिए। और लोन जो है वो ये आया है आपका प्रीवियस ईयर 1920 के अंदर, और ये स्टार्ट होगा आपका फाइनेंशियल, मतलब इसका जो आपको डिडक्शन मिलना स्टार्ट होगा दैट विल बी फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2021। मतलब अभी हमें मिल सकता है अगर हमारा लोन जो डिडक्ट है, लोन जो हमारा है प्रीवियस ईयर 1920 1 मार्च 19 से लेकर के 1 अप्रैल 19 से लेके 31 मार्च 20 की ड्यूरेशन में अगर हमने लोन सैंक्शन कराया है, देन इन दिस ईयर वी कैन क्लेम फॉर दिस डिडक्शन। नाउ इसमें अमाउंट ऑफ डिडक्शन जो है वो अप टू a deduction for interest payment is up to 1,50,000 is available under this section EEE. Now this deduction is over and above the deduction of 2 lakh for interest payment जो कि section 24B में लिखा हुआ है। So basically if you have taken loan till the amount 35 lakh और आपकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन है बिलो 45 लाख है, तो आप एक साल में 3,50,000 तक का डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 एंड 24B मिला करके ले सकते हैं। Now Mr. Chinmay, a salaried individual borrowed a loan of 43 lakh. See, उसने लोन लिया था 43 lakh का for acquisition of residential house property for self occupation which is sanctioned on 1 अप्रैल 2019 को सैंक्शन हुआ था बट डिसबर्स्ड हुआ है 11 मई 2019 को। सो उसका लोन अमाउंट वो उसका जो लोन था वो 43 लाख का था। क्या borrowed a loan of ₹43 lakh और उसका जो प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन है विद द स्टैम्प ड्यूटी मिला करके व्हाट वाज द प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन 45 लाख जो कि हमारी लिमिट के अंडर में आ रहा है। इसका इंटरेस्ट रेट ही वाज पेइंग 9%। Now compute the amount of interest on housing loan allowable as deduction under the provisions of Income Tax Act 1960-61. सो डिडक्शन अलाउएबल while computing income under head income from house property के अंदर आपको 43 लाख पे 9% इंटरेस्ट रेट से आप दे रहे हैं फॉर द 11 मंथ्स का पीरियड। यहाँ 11/12 क्यों लिखा है? इट इज रिटन बिकॉज यहाँ पे आपको सैंक्शन तो अप्रैल में हो गया था बट डिसबर्स कब हुआ था? मई को। सो मई से लेकर के वापस अप्रैल 2020 तक 11 मंथ्स हुए, सो 11/20। सो ये हमारा टोटल डिडक्शन हमें मतलब जो हमारा बनता है एक साल का वो इंटरेस्ट हमारा इतना बनता है 3,54,750। बट हमारा डिडक्शन जो रेस्ट्रिक्टेड है 24B के अकॉर्डिंग 2 लाख तक का इंटरेस्ट आपको माफ है। अगेन when we calculate deduction for this 80 EEA इसका भी मैक्सिमम अमाउंट कितना हो जाता है 1,50,000। सो जो रेस्ट था हमारा 3,54,750 में से हमने ये अमाउंट तो डिडक्ट कर दिया। सो अभी हमारे कितना बचा है 1,54,750 एंड दैट टू इसमें भी हमारा 1,50,000 तक का ही मैक्सिमम लिमिट जो है 80 EE के ड्यूरेशन में आ रहा है। सो हमारा इन अ ईयर 3,50,000 तक का इंटरेस्ट का डिडक्शन हमें मिल जाएगा अगर हमारे पास 45 लाख तक का लोन अमाउंट एंड प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन है तो। नाउ दिस इज वन क्लॉज ही नए बजट में आया है 80 EEB। AEB इज फॉर टू प्रमोट पीपल टू बाय इलेक्ट्रिक व्हीकल। सो ये हमें नए बजट में आया है जो कि इफ यू आर बाइंग एनी इलेक्ट्रिकल व्हीकल तो आपको जो भी इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन है आपका उस पे आपको 1.5 लाख तक का डिडक्शन और मिल जाएगा। बट द
कंडीशन इज लोन मस्ट बी सैंक्शन एनी टाइम ड्यूरिंग 1 अप्रैल 2019 के बाद से जो लोन सैंक्शन हुआ है टिल मार्च 23 तक, सो उस ड्यूरेशन के बीच में जो भी आपका लोन अमाउंट है उसके इंटरेस्ट के ऊपर आपको 1.5 लाख तक का और डिडक्शन मिल जाएगा अगर आपने कोई भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल परचेज किया है. दिस इज वाई कि आप डिडक्शन लेने के लिए एटलीस्ट यू बाय इलेक्ट्रिक व्हीकल. सो दिस प्रोविजन गवर्नमेंट हैज मेड. Now deduction under ATG. ATG is, as I told in last classes, G is for donation. सारे के सारे G donation से related है. कहाँ पे आप donation दे रहे हो, कितना, किसी में 100% तक allowed है, किसी में restrictions है 50% तक. So from financial year 17-18, any donations made in cash exceeding 2000 तक का डोनेशन कैश में दे सकते हो. 2000 से ऊपर का डोनेशन इज नॉट अलाउड इन कैश और उसका कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा. So there are 4 categories of deduction. Basically 4 categories है जिसमें कि 100% डिडक्शन विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट. उसके अंदर किसी क्वालिफाइंग लिमिट की जरूरत नहीं. जितना आपने डोनेट किया वो 100% आपका हो जाएगा. इफ यू आर डोनेटिंग इन नेशनल डिफेंस सेटअप, इफ प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मोनी, देयर इज अ लिस्ट, बहुत बड़ी लिस्ट है जिसमें आप चेक कर सकते हैं. नेशनल स्पोर्ट्स फंड में, कल्चरल फंड में, चिल्ड्रंस फंड में, इलनेस असिस्टेंस फंड में. तो बहुत लंबी लिस्ट है. फॉर 100% डोनेशन, स्वच्छ भारत कोष, क्लीन गंगा कोष, नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज. नाउ अनदर वन इज फॉर 50%. कोई भी डोनेशन, सपोज आपने 1 लाख दिया तो उसका 50%, 50,000 तक का आपका जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड में इफ यू आर पेइंग, तो 50% तक का डिडक्शन आपको अलाउड होगा जितना अमाउंट यू हैव डोनेटेड. प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट फंड के अंदर, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, दीज आर ओनली 4. सेकंड के अंदर, नाउ थर्ड के अंदर, डोनेशंस टू द फॉलोइंग आर एलिजिबल फॉर 100% डिडक्शन सब्जेक्ट्स टू 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम. नाउ दिस एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम इज सारे डिडक्शंस करने के बाद जो इनकम बचती है, लाइक जो जीटीआई होती है, जीटीआई में से व्हेन वी हैव डिडक्टेड एवरीथिंग फ्रॉम 80C, जो भी 80C से लेकर 80D तक हमने 80C, 80D, 80E जो भी बचा है अब हमारे पास, जो भी कैपिटल गेन्स वगैरह हुए, तो वो सारा निकालने के बाद जो इनकम बचेगी दैट वुड बी एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम. अगर हमने गवर्नमेंट और एनी अप्रूव्ड लोकल अथॉरिटी, इंस्टीट्यूशन और एसोसिएशन टू बी यूटिलाइज फॉर पर्पस ऑफ प्रोमोटिंग फैमिली प्लानिंग के लिए अगर आपने किया है तो उसमें आपका 10% एडजस्टेड हो जाएगा. मतलब आपने जितना भी पेमेंट किया है उसमें से जितना भी आपका एडजस्टेड जीटीआई था उसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा. ना डोनेशन बाय ओलंपिक एसोसिएशन को अगर आपने पे किया है तो किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर जहां स्पोर्ट्स और गेम्स की स्पॉन्सरशिप इंडिया कर रहा है बाहर, तो वहां पे 100% होगा. In case donations to the following are eligible for 50% deduction, eligible होगा any other fund or any institution which satisfied condition mentioned is. इस सेक्शन के अंदर बहुत सारी जो कंडीशंस लिखी अगर वो सेटिस्फाइड होती हैं तो फैमिली प्लानिंग के केस में अगेन हाउसिंग अकोमोडेशन और पर्पस ऑफ प्लानिंग डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट ऑफ सिटीज टाउन, किसी आपने ऐसी अथॉरिटी को पे किया जो कि डेवलपमेंट या सिटीज या टाउन्स की डेवलपमेंट में काम कर रही है, उसको अगर आपने पे किया है तो एनी कॉर्पोरेशन रेफर्ड इन सेक्शन 1026 बीबी फॉर प्रमोटिंग इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए अगर आपने पे किया है तो फॉर रिपेयर्स और रेनोवेशन ऑफ एनी नोटिफाइड टेम्पल, मॉस्क, गुरुद्वारा, चर्च, और अगर इनके रेनोवेशन के लिए आपने पे किया है तो आपको 10% एडजस्टेड में से 50% डिडक्शन अलाउड होता है. Now what is adjusted total income? Adjusted gross total income is the gross total income, sum of income under all heads. पहले तो जितने 5 heads है उनकी income हमें करनी है, उसमें से क्या क्या लेस हो जाएगा. अमाउंट डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 80C से लेके 80U तक, इस G को छोड़ के बाकी U तक जितने भी डिडक्शन है 80 के अंदर वो सारे हो जाएंगे. एग्जेम्प्ट इनकम है वो हट जाएगा. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्सेबल एट 15%. सो टैक्स, ये 15% टैक्स रेट से जो भी आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है उसको जब आपने ऐड किया था ड्यूरिंग कंप्यूटेशन तो वो हो जाएगा. और इनकम रेफर टू इन सेक्शंस के अंदर जो भी इनकम मेंशन है ए बी सी ए सी ए डी रिलेटिंग टू नॉन रेजिडेंस और फॉरेन कंपनीज के लिए वो इंक्लूडेड हो जाएगी. तो दीज आर द बेसिक 4. एक में 100% डिडक्शन है, एक में 50% है, एक में 100% है सब्जेक्ट टू 10% एडजस्टेड जीटीआई में, और एक में 50% है सब्जेक्ट टू 10% एडजस्टेड जीटीआई.
Now let's understand this one example, last example for this particular section. Mr. Bala Gangadhar Tilak, 58 years की एज है, उनकी ग्रॉस टोटल इनकम है 7,75,000, ठीक है, जो कि इनकम उनकी सैलरी और प्रॉपर्टी से आई है, हाउस प्रॉपर्टी से. उन्होंने कहाँ कहाँ पेमेंट किया है? उन्होंने मेजर एक डॉटर है, उनकी मेजर डॉटर के लिए उन्होंने 20,000 तक का प्रीमियम पे किया है. उसकी अश्योर्ड वैल्यू 1,80,000 है प्रीमियम की, लाइफ इंश्योरेंस की. मेडिकल इंश्योरेंस उन्होंने 12,000 खुद का, स्पाउस का 14,000 पे किया है. डोनेशन उन्होंने पे किया है, अब सी, डोनेशन टू पब्लिक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन 80G के अंडर में जो रजिस्टर्ड है, उसके लिए उन्होंने 50,000 बाय द वे ऑफ चेक, चेक से पे करना जरूरी है. LIC के पेंशन फंड में 60,000 डोनेशन. नेशनल चिल्ड्रन फंड में फिर उन्होंने डोनेट किया 25,000, जो कि 100% एग्जेम्पशन में आएगा. डोनेशन टू जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड 25,000, जो कि ये फर्स्ट वन वाला इस 100% डिडक्टिबल हो जाएगा, ये आपका 50% डिडक्टिबल हो जाएगा. डोनेशन टू अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन फॉर प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग 40,000, अगेन फैमिली प्लानिंग वाले में क्या, डिपॉजिट 1 लाख उन्होंने PPF में जमा किया है. सो कैसे इसका जी का कंप्यूटेशन होगा, लेट्स सी. टोटल इनकम उनकी हुई 7,75,000, राइट. उसके बाद डिडक्शन उन्होंने स्टार्ट किया, 1 लाख PPF का था, वो डिडक्ट किया. अब इन्होंने पे तो किया था लाइफ इंश्योरेंस के लिए 20,000, बट उसकी वैल्यू क्या थी, 1,80,000. 1,80,000 का 10% लिया तो 18,000. बताया आपको, जो भी लेस होगा वो अमाउंट आप पे करोगे, तो आपका टोटल कितना हो गया, 1,18,000, राइट. नाउ डिडक्शन अंडर CCE, जहां पे आपने LIC पेंशन फंड का पे किया है 60,000, वो ऐड हो जाएगा. तो CCE, ATC और CC रेस्ट्रिक्टेड, ये टोटल अमाउंट हो गया आपका 1,78,000. नाउ इसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 1,50,000. सो यहाँ पे अब 80D के अंडर आ जाए, यहाँ पे आपकी लिमिट एग्जाम्पशन हो जाती है 1,50,000 तक. अंडर आपने मेडिकल इंश्योरेंस सेल्फ का और स्पाउस का लिया था 26,000, बट ये रेस्ट्रिक्टेड है 25,000 तक ही. नाउ डिडक्शन अंडर 80G, तो 80G का इन्होंने डिडक्शन कैसे कैलकुलेट किया है, ये इनकम इसमें से 1.5 लाख माइनस किया, इसमें से 25 एंड 87 माइनस किया, तो हमारी टोटल इनकम तो बनी ये. बट हमने ये 80G को कैसे डिडक्ट किया है, कैसे इसका हमने चेक किया है, वो सी. नेशनल चिल्ड्रंस फंड के अंदर 25,000 था, जो कि 100% था. It's 7:02 and I think I need to, I'll explain this to you in the next class, this question. Okay. So it's time for your next class. I'll explain it to you in next class, right? Stop share. Okay then, join your next class, please.